Hello friends. So I am back with my new lecture. The topic of today's lecture is comparison of Indian Constitution with Japanese Constitution. We have already discussed about Indian Constitution comparison with UK, US, Russian, German and French. Now we'll study the Japanese Constitution. In the next lecture we'll study the South African, and after that we'll study the Canadian Constitution. Starting with the lecture without doing much delay. So what are the similarities? Both the constitutions are written constitution, India and Japan, and here, as you know, Japan constitution is also known as Meiji Constitution, which is Meiji, Meiji Constitution. Okay, so and it was very old constitution, Japan constitution, which was drafted in 80s 18th 19th century, but actually the constitution was changed again. Previously the constitution was written keeping in mind the more powers are given to the emperor or monarchy, but after Second World War, where Japan was defeated, so US, the Japan constitution was changed due to more influence of US, because it is, you already know that US has come out as winner, the allies have come out as winner in the Second World War, and therefore the impact of US is more in drafting the Japanese constitution, and there and then and there Japanese constitution was changed in such a way that the fundamental rights, they are awarded to the people. Procedures established by law, some the fundamental rights cannot be taken away from the people except according to the procedure established by law. And in that, after that, pacifism is also introduced in Japanese constitution. Pacifism is basically demilitarization of Japan. Means Japan does not hold any military of its own or any weapon of its own. Japan will place, means Japan will not have any military of its own. Also, Japan, will will not only bring peace to its nation, but also globally also. So Japan will play a peaceful role in demilitarizing the other countries also. So pacifism is introduced in the Japanese constitution, and powers are given to the parliament. So more powers to legislature. Here similarity, a procedure is established by law that the fundamental rights cannot be taken away except according to procedure established by law, and this procedure established by law we have taken from the Japan constitution. Head of government in both the countries are prime minister, and legislative setup, both have two houses of parliament. Now these two houses of parliament, in Japan it is known as diet. Diet बोलते हैं वहाँ पे, diet. हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, पर वहाँ पे collectively it is known as diet in Japan. तो मोटा मोटा पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हमारे यहाँ वैसे ही जापान में भी इंट्रोड्यूस, मतलब जापान में जैसा है वैसे ही इंडिया में भी है, या फिर जैसा इंडिया में वैसे ही जापान में है. अदर सिमिलैरिटीज, जुडिशियल रिव्यू, बोथ दी कंट्रीज हैव जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के पास पावर है. और कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ दी कंट्रीज, इट इज एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द सोर्स ऑफ, which is the source of the human rights. Rather, in Britain, it is the human rights, or it is the fundamental rights, uh, uh, whose result is the constitution. Or you can say in UK, constitution is the result of human rights, which is the AV dices. Three law, हम बात करते हैं ना तीन कानूनों की, जिसमें से दो हमारे अडॉप्ट किए गए हैं, एक नहीं किया गया, वो यही था. AV डाइसी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट इन जापान एंड इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये सिमिलैरिटीज है. पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे भी है, हमारे यहाँ भी है. वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं, वो भी मेजोरिटी में होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर. तो ये इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी हमारे यहाँ भी होते हैं. तो एक तरह से डेमोक्रेसी, जापान में भी डेमोक्रेसी है, बट जापान में मोनार्की भी है. उसके बारे में आगे बात करते हैं. सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस में फ्लेक्सिबिलिटी जापान में बिल्कुल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं किया जा सकता, बहुत ही रिजिड है. हमारे यहाँ बहुत प्रोविजन है, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल.
पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ फेडरल है, वहाँ यूनिटरी है जापान में। हमारे यहाँ तो स्टेट सिस्टम है, स्टेट्स में डिवाइडेड है इंडियन टेरिटरी, बट वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है। अपॉइंटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट करते हैं ऑन दी, कब करते हैं, जब लेजिस्लेचर जो भी मेजोरिटी वाली पार्टी है वो अपना हेड चुन लेती है, यानी कि अपना लीडर चुन लेती है। तो लीडर ऑफ दी legislature party who gets majority in the parliament will choose its leader, and that leader will be appointed by president as prime minister. While here in Japan, prime minister is appointed by both the houses of parliament. So दोनों को मिलके एक प्राइम मिनिस्टर चुनना होता है। अगर कंसेंसस नहीं बैठता तो जॉइंट सिटिंग होती है, और मतलब बेसिकली फिर कंसेंसस बिठाने की कोशिश की जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर दोनों पार्लियामेंट के सदन चुनते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट चुनता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एडवाइस ऑफ पीएम, बट वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपॉइंट कर सकता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे यहाँ रिपब्लिक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट, बट वहाँ पे मोनार्की है, यानी कि जो मोनार्की है, मोनार्क विद द एम्परर बीइंग द रबर स्टैम्प हो गए थे जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। 1947 में लागू हुआ है वहाँ का भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे भी रबर स्टैम्प हो गया एम्परर। बट वहाँ पे एक तरह से मोनार्की है, क्योंकि एम्परर तो हेरिडिटरी है टाइटल, मतलब उन्हीं के ही जो आगे जो उनकी जनरेशन है उन्हीं को ही एम्परर की उपाधि दे दी जाती है। हमारे यहाँ जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं आप जानते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कोलिजियम से कंसल्टेशन करके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो कोलिजियम होती है। बट जापान में ये जो पार्लियामेंट है वो चुनती है जजेस को, पार्लियामेंट, यानी कि वहाँ पे पार्लियामेंट के पास काफ़ी पावर्स हैं। आप अगर आप देखें बेसिकली हमारे यहाँ भी वो होता है, क्या नाम है इसका, दिस वन यू कैन से दी नो कॉन्फिडेंस मोशन, वहाँ पे भी होता है। और वहाँ पे फुल मेजोरिटी जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों सदन चुनते हैं, तो मेजोरिटी में होना चाहिए दोनों सदनों में, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के पास वहाँ पे भी काफ़ी पावर्स हैं, और हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं ही हैं, ठीक है। बट और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होल सोल अथॉरिटी होती है जैसे हमारे यहाँ होती है, बट वहाँ पे मोनार्क होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है। तो मेन डिफरेंसेस यही हैं, बस ये एक डिफरेंस आप याद रखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चुनता है वो लेजिस्लेटिव पार्टी जो मेजोरिटी में होती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि प्रेसिडेंट चुनता है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर दोनों सदन मिलके चुनते हैं। सो दी प्राइम मिनिस्टर पार्टी शुड हैव दी मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन जापान। दैट इज द major difference which you should remember. So this is basically the difference between Japan and Indian constitution, similarity as well as differences. In the next lecture, we'll study South African and then Canadian constitution. Thank you very much.